Hello students, I am Anusha Srivastav and you are watching Anuraja Nursing Classes. So today we are going to discuss on a very interesting topic which is from gastrointestinal disorder which is peptic ulcer disease. Okay, so let's start on the topic. Okay, so what we are going to discuss, firstly we will going to discuss about the introduction of the peptic ulcer disease, that what is peptic ulcer disease, then we will discuss about its definition, and then we will discuss about the types of the peptic ulcer disease. Then we will discuss about the etiology, what are the causes and the risk factor, why the person is getting the peptic ulcer. Then we will discuss about its clinical manifestation, what are the signs and symptoms they are going to have when they are getting peptic ulcer. Then we will discuss about the complications, that what peptic ulcer can cause, other signs and symptoms or complication. Then we will discuss about diagnostic evaluation, how we are going to diagnose the peptic ulcer. Then we will discuss about the medical management, that how we are going to treat it. And then we will discuss about the surgical and nursing management, and then we will move further for summary and conclusion. So let's start from the intro onwards. Okay, so what is peptic ulcer disease? So as we know that peptic is somewhat related to the stomach, right? So पेप्टिक अल्सर डिजीज इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी टाइप की कंडीशन है जो क्या होता है, कहाँ पे होती है, स्टमक एरिया में, नॉट ओनली स्टमक बट स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में, लोअर इसोफेगस में। इस डिजीज में होता क्या है, तो यहाँ पे एक्सेसिव एसिड सेक्रेशन की वजह से या एक्सेसिव इरिटेंट्स की वजह से जो इनर लाइनिंग ऑफ एनी ऑर्गन होती है, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन, वो स्टमक, इंटेस्टाइन या फिर हमारे लोअर इसोफेगस में इन्फ्लेम हो सकती है, इरोड हो सकती है। और जब वो इन्फ्लेम और इरोड होगी म्यूकोसल मेम्ब्रेन, तो उसी को हम क्या कह देंगे, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ओके, सो एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये हमारे लोअर इसोफेगस में, स्टमक में, डिओडेनम में। डिओडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, राइट, डिओडेनम में। एंड मार्जिन ऑफ अ गैस्ट्रोजेजुनल एनास्टोमोसिस आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, अगर किसी की सर्जरी हुई है, ठीक है, गैस्ट्रोजेजुनल एनास्टोमोसिस की सर्जरी हुई है, तो उसके बाद जो उसका मार्जिन होता है उसमें भी पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर 3,50,000 न्यू केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, so in what age group it is more common? So it can be also occur in children and infants. It can also occur in between the age of 40 to 60 years, and it is most common in males than females. And in females, after menopause, there's equal chances to getting peptic ulcer as compared to men's, right? एंड पेप्टिक अल्सर स्टमक की जो बॉडी होती है उसमें विदाउट एसिड सेक्रेशन भी हो सकता है, क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ अदर इरिटेंट्स, राइट। So how we are going to define it? So peptic ulcer is an excavation or a hollowed out area, मतलब जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है उसमें एक हॉलो एरिया बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। कहाँ कहाँ पे हो सकता है, म्यूकोसल वॉल स्टमक में, राइट, पाइलोरस रीजन में, ड्यूडेनम में जो कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और इन द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में। So depending on where the peptic ulcer is happening or occurring, we have divided the peptic ulcer into three types, right? First is esophageal ulcer, where peptic ulcer is going to occur in the lower esophageal area, right? Gastric ulcer, where the stomach is affected, stomach mucosal wall is affected, and duodenal ulcer, where the first part of this small intestine, जो हमारा duodenum है, उसमें अफेक्ट आता है, उसकी लाइन म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो होती है वो इरोड हो जाती है।
और फोर्थ क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन द कॉज विच इज स्ट्रेस रिलेटेड, राइट। तो स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डिजीज या फिर स्ट्रेस रिलेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज भी हम कहते हैं। तो ये हमारी बेसिकली चार क्लासिफिकेशन होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज की: इसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर एंड SRMD. We will discuss one by one. So esophageal ulcer I already mentioned कहाँ पे होता है? लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेजियस। क्या होगा? जो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस की म्यूकोसल लाइनिंग होगी, एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? अल्सर फॉर्म होने लगेगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन इरोड हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे इसोफेजियल अल्सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज गैस्ट्रिक अल्सर। सो गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होगा? एनी पोर्शन ऑफ द स्टमक। वो पाइलोरस हो सकता है, बॉडी हो सकता है, राइट। दे आर मोस्टली कॉमनली फाउंड इन एंट्रम। ओके, पाइलोरस एंड एंट्रम में मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है। बट गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो लेस कॉमन होते हैं देन ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर 80% ऑफ पेप्टिक अल्सर होते हैं। मतलब मोस्ट कॉमन अगर पेप्टिक अल्सर कोई है, वो कौन सा अल्सर है? ड्यूडेनल अल्सर, राइट। ड्यूडेनल अल्सर किसी भी एज में हो सकता है, बट जिसका हाई इंसिडेंस है वो 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज में होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर प्रिवलेंट ज्यादा है वुमेन में एंड ओल्डर एडल्ट्स में। पीक इंसिडेंस कब होगा गैस्ट्रिक अल्सर का? ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 50 साल के ऊपर जो लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा और वुमेन्स में ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा। बट ड्यूडेनल अल्सर हमें यंग एज में देखने को मिल रहा है, एडल्ट एज में, मिडिल एडल्टहुड में, 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज में, राइट। एंड द मोर्टालिटी जो होती है गैस्ट्रिक अल्सर से, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट गैस्ट्रिक अल्सर से ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ड्यूडेनल अल्सर। बट इन ड्यूडेनल अल्सर में मेजरली कॉज क्या होता है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से मोस्ट कॉमनली ड्यूडेनल अल्सर कॉज होता है। एंड और क्या क्या अदर रीजन हो सकते हैं? तो हाई HCl हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेशन हो सकता है, अल्कोहल इंजेशन, स्मोकिंग हो सकता है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से हो सकता है, लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी ड्यूडेनल अल्सर कॉज हो सकता है, ज़ोलिगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से भी ड्यूडेनल अल्सर कॉज हो सकता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है? जो हमारी गैस्ट्रिन एंजाइम होती है, गैस्ट्रिन जो लोकल एंजाइम्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? अल्सर कॉज होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर किस किस वजह से कॉज हो सकते हैं? तो H पाइलोरी, मेडिसिन, स्मोकिंग, बाइल रिफ्लक्स, ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के। गैस्ट्रिक अल्सर हमने ऑलरेडी देखा था कि वुमेन में ज्यादा प्रेवलेंट होता है, 50 ईयर्स ऑफ एज में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डिजीज। यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डिजीज और स्ट्रेस रिलेटेड पेप्टिक अल्सर और स्ट्रेस फिजियोलॉजिक स्ट्रेस अल्सर भी हम इसको कहते हैं। ये पेशेंट हु हैड सीवियर बर्न्स और ट्रॉमा और सर्जरी, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। In SRMD, there is either diffuse superficial mucosal injury or discrete deeper ulcer in the fundus and body portion of the stomach. यहाँ ये होता कहाँ पे है? तो बॉडी पोर्शन या फिर फंडस में होगा स्टमक के, और या तो ये डिफ्यूज होगा या फिर डीप अल्सर देखने को मिलेगा। Patient with coagulopathy and those who experience respiratory failure resulting in mechanical ventilation for more than 48 hours are at higher risk. ऐसे पेशेंट जिनको कोएगुलोपैथी डिसऑर्डर्स है या फिर जिनको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है और वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे चल रहे हैं, विद इन 48 आवर्स उनको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो कौन है रिस्क में? हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर जेनेटिक फैक्टर्स है तो फैमिलियल टेंडेंसी, अगर किसी की फैमिली में किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो ऑफस्प्रिंग को भी होने के चांसेस होते हैं।
एक फर्दर लिंक नोट किया गया है जिसमें ब्लड टाइप जो ओ है वो ज्यादा ससेप्टेबल है टू पेप्टिक अल्सर देन दोज विद अदर ब्लड टाइप्स. There are also association between duodenal ulcer and chronic obstructive pulmonary disease और chronic renal disease. ये हमें रिसर्च के थ्रू प्रूफ किया गया है. ठीक है. अदर फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा नशेड्स यूज करने से अल्सर हो सकता है. ठीक है. अल्कोहल इंजेक्शन यूज कर, कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल इंजेस्ट कर रहा है या एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहा है, एच पायलोरी का इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी बहुत हो रही है, या मेल्स हैं, या कैफीन बेवरेजेस है, या जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हुआ है, या फिर जीईआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हुई है, जिसमें क्या होता है कि हमारा HCl क्या होगा, रिफ्लक्स होगा. कुछ भी हम खा रहे हैं वो हमारे अगेन रिफ्लक्स होगा, मतलब बाहर आ जाएगा जैसे ही हमने इंजेस्ट किया. हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं, इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, कार्डियक स्फिंक्टर्स, वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फूड वापस से अपने ईसोफेगस के थ्रू माउथ से बाहर आ जाएगा. ठीक है. अब जब फूड आएगा तो साथ में HCl भी आएगा, और HCl जब आ रहा है तो क्या करेगा, यूजुअली HCl स्टमक के इन्वायरमेंट में रहने के लिए, पर अगर ईसोफेगस में है तो HCl का जो pH होता है ईसोफेगस नहीं झेल पाती, जिसकी वजह से ईसोफेगस की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है उसमें इरोजन आने लगता है. राइट. तो उसकी वजह से इसोफेजियल अल्सर हो सकता है. तो एज वी हैव सीन इन हियर, ये हमारा कुछ कंपैरिजन है between duodenal ulcer and gastric ulcer. Most of the things we have already discussed, but let's see some of the signs and symptoms and clinical findings. तो जो हमारा duodenal ulcer है उसमें हाइपर सिक्रेशन ऑफ स्टमक एसिड मोर कॉमन है. ठीक है. वेट गेन हो सकता है पेशेंट को. ठीक है. पेन ऑकर होगा 2 to 3 hours आफ्टर अ मील, मतलब जब ये पेशेंट कुछ खाएगा तो उसके 2-3 घंटे बाद पेशेंट को पेन होने के होता है. ठीक है. एंड जब पेशेंट इवन अवेक होगा रात में 1 से 2 बजे के बीच में, पेशेंट अचानक से उठेगा और उसको दर्द होगा. ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट कुछ खा रहा है, ड्यूडेनल अल्सर में पेशेंट कुछ खा रहा है, तो उसको क्या होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है. ठीक है. थोड़ा दर्द से रिलीफ मिलेगा. खाने के 2-3 घंटे बाद पेन होगा, लेकिन जब पेशेंट कुछ खाएगा उस टाइम पे उसको थोड़ा पेन से रिलीफ मिलता है. ठीक है. यूजुअली वॉमिटिंग नहीं देखने को मिलती है ड्यूडेनल अल्सर में. हेमरेज लेस लाइकली होता है इन कंपैरिजन टू गैस्ट्रिक अल्सर. और बट मिलेना ज्यादा देखने को मिलता है. मिलेना क्या है, हिडन ब्लड इन द स्टूल, और टैरी स्टूल हम कहते हैं मिलेना में होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, मोर लाइकली टू परफोरेट होता है. मोर लाइकली टू परफोरेट मतलब इसमें परफोरेशन कॉमन होता है कि ड्यूडेन पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को, पूरे ड्यूडेनम को परफोरेट करके फूड बाहर पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच जाए. ठीक है. मेलिग्नेंसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. रिस्क फैक्टर होते हैं कौन से, एच पायलोरी, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिरोसिस एंड स्ट्रेस. ठीक है. गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, तो ये यूजुअली 50 एंड ओवर में देखने को मिलते हैं. रेशियो इनमें कॉमन है 1:1. 15% पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं. नॉर्मली इनमें हाइपोसिक्रेशन होता है HCl का, बहुत ज्यादा HCl की वजह से ये गैस्ट्रिक अल्सर हो ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों, क्योंकि HCl ऑलरेडी एक नेचर है स्टमक की इनर लाइनिंग है कि HCl को टॉलरेट कर सकती है. राइट. वेट लॉसेस में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट को जैसे ही पेशेंट खाएगा उसको तुरंत दर्द होने लगता है और पेशेंट नहीं बियर कर पाता है, इस वजह से वो खाना अवॉइड करने लगता है, उसका वेट लॉस होने लगता है. ठीक है. वॉमिटिंग भी इसमें देखने को मिलती है. जब भी पेशेंट कुछ खाता है तुरंत ही वॉमिटिंग कर देता है, उसकी वजह से भी वेट लॉस देखने को मिलता है. पेन ऑकर्स 1/2 to 1 hour आफ्टर अ मील. रेयरली ऑकर्स इन एट नाइट में नहीं होगा, बट ड्यूरनल अल्सर में नाइट पे पेन होता है. पेन वॉमिटिंग के अगर पेशेंट करता है तो पेन रिलीफ हो जाता है. क्यों, क्योंकि गैस स्टमक में ही अल्सर हुआ है और उसमें वॉमिटिंग कर रहा है तो सारा कंटेंट बाहर चल गया, तो अब कुछ भी अल्सर को परफोरेट और इरिटेट नहीं कर रहा है, तो वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. ठीक है. इंजेक्शन ऑफ फूड डज नॉट हेल्प. कुछ भी खाएंगे तो वो वॉमिटिंग होगा, पेन होगा. ठीक है. वॉमिटिंग कॉमन है, हेमरेज कॉमन हो जाता है यहाँ पे. हेमेटमेसिस मोर कॉमन है देन मेलेना. क्यों, क्योंकि स्टमक नियर बाय द अपर GI ट्रैक्ट के पास में है, पर जो इंटेस्टाइन है वो लोअर GI ट्रैक्ट में आता है. राइट. और लोअर GI ट्रैक्ट में अगर हेमरेज हुआ है तो स्टूल के थ्रू बाहर जाएगा,
अपर जीआई ट्रैक के पास में अगर हेमरेज हुआ है तो वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमनली चीज कॉमनली हम समझ सकते हैं, राइट। मैलिग्नेंसी ओकेजनली हो सकती है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, तो एच पाइलोरी, गैस्ट्राइटिस, अगर स्टमक में इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से हो सकता है। अल्कोहल स्मोकिंग, यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, राइट। तो ये हम कुछ पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हैं, जैसे कि ड्यू टू इट सम मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारे एसिड, बाइल सॉल्ट, एस्पिरिन, एच पाइलोरी, क्या होगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन गैस्ट्रिक के एरिया या स्टमक की ब्रेकडाउन हो जाएगी। एसिड बैग डिफ्यूजन होगा म्यूकोसा में, म्यूकोसल सेल्स डिस्ट्रक्ट होने लगेंगी, HCl इंक्रीज हो जाएगा एंड पेप्सिन रिलीज होने लगेगा। फर्दर म्यूकोसल इरोजन होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लीडिंग होगा और अल्सरेशन कॉज होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर एसिड बैग डिफ्यूजन म्यूकोसा में होता है तो हिस्टामीन रिलीज होगी, उसकी वजह से भी एसिड इंक्रीज हो जाएगा और पेप्सिन रिलीज होगा। या फिर हिस्टामीन वैसोडाइलेशन भी करा सकते हैं और कैपिलरी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन जो होंगे वो लॉस होने लगेंगे और म्यूकोसा में एडिमा कॉज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो कुछ साइन एंड सिम्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो मेजरली क्या होता है, मेनी पीपल सिम्टमलेस होते हैं, कोई भी एसिम्टोमेटिक होंगे, कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा। 20-30% में परफोरेशन या फिर हैमरेज देखने को मिलता है विदाउट एनी मैनिफेस्टेशन। यूजुअली जब पेशेंट आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, वो क्या कहता है, उसको डल, ग्नॉइंग पेन और बर्निंग सेंसेशन हो रही है मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में, या फिर और इन द बैक बैक एरिया में उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है। पायरोसिस हो रहा है, पायरोसिस का अनदर वर्ड क्या कह सकते हैं, हार्टबर्न हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग के कंप्लेन लेके आएगा। साइलेंट पेप्टिक अल्सर अगर है, इट मीन्स वो ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है ओल्डर एडल्ट्स में, और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं उनमें साइलेंट पेप्टिक अल्सर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो लोकेटेड कहाँ होगा, डिस्कम्फर्ट हाई इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, एंड कब होगा, 1 से 2 या आधे से 1 घंटे में पेशेंट आफ्टर मील्स में पेशेंट को होगा। पेन कैसा होगा, पेशेंट बोलेगा कुछ जल रहा है मुझे मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में, या फिर गैशियस फील होगा पेशेंट को कि बहुत गैस बन रही है। ड्यूडेनल अल्सर में क्या पेशेंट को देखने को मिलेगा, 2 से 5 घंटे में सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को आफ्टर द मील। दर्द होगा, जो दर्द होगा वो बर्निंग, मतलब जैसे कुछ जल रहा है या फिर कुछ मरोड़ क्रैम्प लाइक पेन होगा, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे होगा, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, बीनीथ द जिफॉइड प्रोसेस में लोकेटेड होगा। ड्यूडेनल अल्सर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बैक पेन भी पेशेंट को देखने को मिलता है। A characteristic of duodenal ulcer, it's a tendency to occur continuously for a few weeks or months, but then disappears for a time, only to recur some months later. मतलब कैरेक्टरिस्टिक, अगर ड्यूडेनल अल्सर है ये कैसे कंफर्म हो जाएगा, जब पेशेंट को महीने हफ्ते महीने पेशेंट को लगातार पेन हो रहा है खाना खाने के 2 से 5 घंटे बाद, ठीक है। फिर पेशेंट को मेलेना भी हो रहा है, लेकिन 2 से 5 हफ्ते हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद पेशेंट को वो रिलीफ सिम्टम हो गए, सिम्टम्स अब नहीं आ रहे, फिर उसको सिम्टम्स आने लगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है किसका, ड्यूडेनल अल्सर का, ठीक है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट को, तो बेसिकली 3 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। हैमरेज होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे इरोजन हुआ है म्यूकोसल लाइनिंग का, ब्लड वेसल्स इरोड हो सकती हैं, अगर जैसे जैसे अल्सर बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से हेमरेज होगा। परफोरेशन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, परफोरेशन बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी लाइनिंग जो होगी ऑर्गन की वो परफोरेट हो चुकी होगी, और जब फूड होगा वो कहाँ जाएगा, पेरिटोनियम लेयर में, और पेरिटोनियम लेयर में अगर गया तो वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है कि पेशेंट को गैस जो स्टमक का आउटलेट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, ठीक है। कैसे पता चलता है कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि
हम पेशेंट से उसकी आइडेंटिफिकेशन डेटा पूछेंगे, मेनली जीआई सिस्टम से पूछेंगे कि उसकी डेली इंटेक, डाइटरी इंटेक क्या है। ठीक है, उसमें देखेंगे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा कैफीन प्रोडक्ट्स ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और अल्कोहल इंजेक्शन कर रहा है, ये सब देखेंगे। ठीक है, मेडिसिन पूछेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रीवियस पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कौन सी मेडिसिन वो इनटेक कर रहा है। यूजुअली हम फोकस करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स पे। देन हम पूछेंगे पेशेंट को कोई प्रीवियस इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, पास्ट इन्फेक्शन, वो हम पूछेंगे। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे प्रॉपर्ली। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम पेशेंट का जीआई असेसमेंट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, बेरियम स्वैलो। बेरियम स्वैलो एक एक्सरे एक्सरे टाइप का बेरियम स्वैलो होता है। इसमें क्या होता है, बेरियम एक आइसोटोप होता है जो हमारी बॉडी में नॉन रिएक्टिव होता है। हम बेरियम को स्वैलो करते हैं एंड देन हम एक्सरे लेते हैं। जहाँ पे बेरियम की टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे इट मीन्स ये है कि वहाँ पे अल्सर हुआ है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो हम पता कर सकते हैं बेरियम स्वैलो से कि कहाँ पे पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अल्सर फॉर्म हुआ है। देन हम पेशेंट को इंडोस्कोपी कर सकते हैं। इंडोस्कोपी ज़्यादा कंफर्मेटरी प्रोसीजर है। ठीक है, इंडोस्कोपी से हम पेशेंट का लाइनिंग, इंडोस्कोप एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके एंड में कैमरा होता है। इंडोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के पेप्टिक अल्सर को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ सम बायोप्सी करके, इंसेशन करके कुछ सेल्स हम वहां से कल्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको हम बाद में कल्चर करेंगे और हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। राइट, स्टूल टेस्ट करेंगे फॉर मेलेना। गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टडी करेंगे कि अगर गैस्ट्रिन का अमाउंट, गैस्ट्रिन जो एंजाइम है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, जिसकी वजह से ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, ब्रीथ टेस्ट करेंगे। ब्रीथ टेस्ट और यूरिया ब्रीथ टेस्ट ये हम कौन से कंडीशन में करते हैं, जब हमें ससेप्टिबल इन्फेक्शन एच पायलोरी का गैस हो कि हो सकता है कि पेशेंट को एच पायलोरी है। ठीक है, तो हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं ओनली फॉर एच पायलोरी इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हमें ये फाउंड आउट होता है कि ये हो सकता है कि एच पायलोरी का है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, सीबीसी करेंगे फॉर सीइंग द एच बी अमाउंट, बिकॉज हेमरेज हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है, तो हेमोग्लोबिन का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा होगा, तो हमें वो चेक करना है। लीवर एंजाइम स्टडीज करेंगे क्योंकि हम देखे थे कि रिस्क फैक्टर में लीवर सिरोसिस की वजह से भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। राइट, देन सीरम एमाइलेज डिटर्मिनेशन करेंगे। नेक्स्ट, 4 मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या करने वाले हैं हमारे पेप्टिक अल्सर डिजीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कंजर्वेटिव थेरेपी। ठीक है, बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट ही करेंगे। एडिक्वेट रेस्ट देना है पेशेंट को। अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसको सिजेट करना है, उसको बोलना है स्टॉप करे स्मोकिंग। ड्रग थेरेपी देनी है। ड्रग थेरेपी में हम क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करेगा, HCl के प्रोडक्शन को ही स्टॉप कर देगा। राइट, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। अगर कोई एलर्जी की वजह से या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब H2 रिसेप्टर्स हमारे जीआई ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, जो कि HCl के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे तो HCl का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। राइट, एंटीबायोटिक्स देंगे अगर एच पायलोरी का इन्फेक्शन हुआ है। साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स देंगे। एंटी एसिड्स देंगे बिकॉज फॉर न्यूट्रलाइजिंग द HCl। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे जो कि हम यूज नहीं करते हैं, यूजुअली रेयरली हम यूज करते हैं। राइट, अगर पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से है या फिर पेप्टिक अल्सर की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो हमें उसको मैनेज करना है। देन एक्यूट एक्सरसरबेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर में बहुत ज़्यादा सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं बट कोई कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को निल पर ओरल रखना है, NPO रखना है, NG सक्शन करना है, नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करनी है, एडिक्वेट रेस्ट देना है पेशेंट को, IV फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, मतलब IV फ्लूइड थेरेपी देंगे। ड्रग थेरेपी देनी है पेशेंट को। ड्रग थेरेपी में बेसिकली फोकस इस पे करना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटी एसिड्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है,
यहाँ पे हम पेशेंट को सेडेटिव भी दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होगा और पेशेंट को सेडेट करने की नीड पड़ सकती है, राइट। देन अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन भी है साथ में, जैसे कि परफोरेशन था, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन था, राइट, हेमरेज था, तो हमें क्या करना है, तो पेशेंट को एनपीओ रखना है, एनजी सक्शनिंग करनी है, आईवी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है, बेड रेस्ट करना है पेशेंट को, आईवी फिर रिप्लेसमेंट देना है। बेसिकली हम आरएल प्रेफर करेंगे, राइट, एनएस नहीं प्रेफर करेंगे, डीएनएस नहीं प्रेफर करेंगे। हमें क्या प्रेफर करना है, आरएल, राइट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है पेशेंट का अगर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हेमरेज है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की नीड पड़ सकती है, ठीक है। स्टमक लवाज करेंगे इफ पॉसिबल है, ठीक है। सर्जिकल थेरेपी क्या करेंगे पेशेंट की, तो अगर पेशेंट को परफोरेशन है तो सिंपल क्लोजर विद ओमेंटम ग्राफ से परफोरेशन को क्लोज कर देंगे, राइट। अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब गैस्ट्रिक जो स्टमक का आउटलेट है वही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो पाइलोरल प्लास्टी करेंगे, मतलब जो पाइलोरिक रीजन होता है स्टमक का उसमें प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाएगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा, उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है। एंड वैगोटमी कर सकते हैं। वैगोटमी में जो वेगस नर्व सप्लाई हो रही है, हम कर रही है हमारे स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो उतने पार्ट को थोड़ा सा एक्सरसाइज करके हटा देंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे पेन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो हमें वैगोटमी करनी पड़ेगी, राइट। अल्सर रिमूवल और रिडक्शन करेंगे, ठीक है, बायलॉर्थ फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, वैगोटमी प्रोसीजर करेंगे एंड पाइलोरोप्लास्टी करेंगे, राइट, अल्सर रिमूवल रिडक्शन अगर हमें करना है तो, राइट। Then what are the nursing diagnosis? We will mainly focus in the peptic ulcer disease. So basically peptic ulcer disease में पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ओके। तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। सेकेंड डायग्नोसिस क्या होगी, इनएफेक्टिव सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट, क्योंकि जो पेशेंट होगा वो खुद की सेल्फ हेल्प मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म कैसे मैनेज करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज को। नोजिया पेशेंट को फील होगा, क्यों, क्योंकि उसके सिम्टम्स क्या हैं, बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, वॉमिटिंग बहुत आ रही है, पेन हो रहा है, तो पेशेंट को वॉमिटिंग की वजह से नोजिया फील होगा, राइट। तो पेशेंट को हमें देखना है फॉर दिस द नर्सिंग डायग्नोसिस वी विल मेक, एंड देन वी विल प्रोवाइड केयर एज पर आवर डायग्नोसिस, एंड देन वी विल इवेलुएट that whether the patient is recovering or the disease is worsening, okay। So next, I hope you liked our this session, peptic ulcer disease। तो क्या था पेप्टिक अल्सर डिजीज? पेप्टिक अल्सर डिजीज बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जीआई ट्रैक्ट की, जिसमें जो हमारा स्टमक है या फिर ड्यूडेनम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है या लोअर इसोफेजिस, वहां पे क्या होगा, अल्सर कॉज हो जाता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, राइट। इसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो बेसिकली 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से, इसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर और स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल अल्सर, राइट। देन हमने इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉजेज, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट हमने सब देखा। एंड नाउ आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel Anuradha Nursing Classes. Thank you so much and stay tuned for the more such classes.